Hello everyone, Chinmay Vera here and welcome to the classroom. In the previous class we are discussed about the introduction, only about the what is computer system architecture, and today we will touch on the digital computers, what is digital computers, and in this chapter we will discuss about the digital, what is bits, what is computer hardware and software, and computer organization, design and architecture. That's all we will discuss today, and in the next class we will cover the logic gates. There is only 12 parts in the there is only 12 parts only in the digital logic circuit and components. So this will take only 12 classes also, and we will cover this part, what is digital computers. This is only the theory part, and after cover these theories and after understand these theories, you will be able to understand what is combinational circuits, map simplifications. So it will be easy if you understood these things, digital computers, organizations, architectures. So have patience, and let's begin the digital computers. Digital computers. Actually, what is digital computers? The digital computer is a digital system that performs various computational tasks. Digital computer is nothing but the digital system. A digital system, we will learn what is digital system, what is digital computers. Here is the digital computer is a digital system. वो एक डिजिटल सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट कंप्यूटेशनल टास्क को कंप्लीट करता है. Then we learn about the digital. What is digital? In digital computers, nowadays we all uses the digital computers. Even the calculator is one of the digital computer. So what is digital? The word digital means there are the information in the computer represented by variables that take a limited number of discrete values. Understand this. The word digital means that the information, वो एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड करता है किसके फॉर्म से ना, वेरिएबल्स के फॉर्म से. वो एक वेरिएबल्स होता है, वो सिर्फ एक वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हमें डिस्क्रीट वैल्यूज देने हैं. डिस्क्रीट मतलब सेपरेट होता है, सेपरेट वैल्यूज. ओके, सेपरेट वैल्यूज. सेपरेट मीन्स वी यूज द डिजिट्स 1, 2, 3. If once we gave the value 1, then we only can give the 2. Again we can't give the values 1. Do you understand? The separate values, discrete values. These values are processed internally by components that can maintain a limited number of discrete states. वो values के लिए जो variables होते हैं वो एक states की तरह होते हैं जिसके अंदर हमें discrete values को put करना होता है और वो internally process होके हमें output देते हैं. These values are processed internally by components that can maintain a limited number of discrete states. ठीक है? Like here is the example. What is discrete values? If we consider decimal number system, there is 0, 1, 2. We all know the decimal numbers 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. Starts from 0, end with 9. These are the decimal. Here 10 numbers. Here we can provide only 10 discrete values. 0, 1, 2, 3 up to 9 तक 10 डेसिमल्स नंबर से, और हम सिर्फ 10 ही डेसिमल्स नंबर से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है? Here is the some important things you have to remember. The first electronic digital computer developed in the year 1940s and used primarily for numerical computation. फर्स्ट जब डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी वो 1940 से हुई थी, और पहले क्या होता था ना, प्राइमरीली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता था जैसे कि कैलकुलेशन. ठीक है? इन दिस केस डिस्क्रीट एलिमेंट्स आर डिजिट्स. फर्स्ट डिजिट्स को ही यूज़ किया गया डिस्क्रीट वैल्यू की तरह, जैसे कि डेसिमल्स. ठीक है? द डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क्स रिलायबली इफ ओनली 2 states were used. If we use only 2 states in the states or 2 states, the digital computers will work reliably, perfectly worked. Because of physical restriction of components, because of human logic tends to be binary. Human logic tends to be binary means true or false, yes or no statements.
ठीक है. Human logic tends to be binary, means true or false statements. We use this in the logic gates. You all clear about this concept in the graduations also, and in plus 2 also we read these things. Binary means true or false. ठीक है. One is 0, one is 1. We can say this on or off. Okay. 1 means on, 0 means off. We know these things. After this digital concept, we have to learn the bits. What is bits? What is bits? Digital computer uses the binary number system. Digital computers always uses the binary number system, where is zeros and ones, which has 2 digits. One is 0 and another is 1. A binary digit is called a bit. Here 0 is 1 bit and 1 is 1 bit. ठीक है. Bits, do you understand bits? A binary digit is called a bit. बाइनरी का 1 जो डिजिट होता है वो एक बीट होता है, हम उसे एक बीट कहते हैं. इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन ए डिजिटल कंप्यूटर इन ग्रुप्स ऑफ बीट्स. जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, वो सब ग्रुप्स होते हैं बीट्स का. 0 1 0 1 0 1 1 ऐसे ही सब बीट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बीट्स होते हैं. ये होल नंबर एक ग्रुप ऑफ बीट्स है, ये भी एक ग्रुप ऑफ बीट्स है. ठीक है. इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन ए डिजिटल कंप्यूटर इन ग्रुप ऑफ बीट्स. By using various coding techniques, group of bits made to be represent not only binary numbers but also other discrete symbols. When group of bits combined by the coding techniques, then here is here different types of instructions CPU can give, or we can take different types of discrete symbols like alphabets, okay, digits, decimals, numbers. Here is the decimals or letters of the alphabet we can use. By judicious use of binary arrangements and by using various coding techniques, the group of bits are used to develop complete set of instructions to perform various type of computations. Here computations means actions, okay. Computer doing actions is known as computations, okay. By judicious use of binary arrangements, ठीक है, सही तरीके से हम बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट्स को, जीरोस वंस को हम यूज़ करके, अरेंजमेंट करके, वेरियस टाइप ऑफ कोडिंग टेक्निक्स यूज़ करके हम उसे ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं उसे यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस, ठीक है. जो इंस्ट्रक्शंस बनते हैं उसमें कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स को लेकर, और फिर उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस होते हैं, ठीक. इसी तरह एक डिजिटल सिस्टम काम करता है. हियर इज द एग्जांपल, वी कैन कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल, ठीक है. We can convert binary into decimal. We all know this conversion before. If I take 1 0 0 1 0 1 1, this is a binary number system. If I convert this into decimal, I have to take the power of the 2, ठीक है. 1 into, if there is how many numbers, 1 2 3 4 5 6 7 numbers, we know. In the decimals there is starts from 0 and end with 9, okay. Here is the, so I will start from the, here is 7 numbers, so I started from the 6, because at the end I have to take this 1 as a 2 to the power 0, ठीक है. So here is 1 into 2 to the power 0 last end, so 1 into 2 to the power 6 plus 0 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. Here all answers are, after solving this we get the 75 is the answer. Here is the conversion of binary to decimal. After bits we have to learn program. In a digital computer there is one part is program. What is program? A computer system is divided into two parts. One is hardware and another is software. What is hardware part?
The hardware of the computer consists of all the electronic components and electromechanical devices that comprise the physical entity of the devices. What is hardware? Hardware part क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस को कंबाइन करके वो एक फिजिकल एंटिटी और एक फिजिकल डिवाइस बनाता है, ठीक है, वही होता है हार्डवेयर. एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Computer software consists of the instruction and data that the computer manipulates to perform various data processing tasks. After the hardware part, we made the hardware by combining the electronic and the electromechanical components. We made a hardware system. Then the hardware, how will the work? How will work a hardware? A hardware part, how will work? By the software. Computer software consists of the instructions and data that the computer manipulates to perform various data processing tasks. जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी टास्क दिया जाता है, वो हार्डवेयर से होते हैं बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है. सॉफ्टवेयर सारे इंस्ट्रक्शंस और तो डाटा वो जो है वो सब मैनिपुलेट करता है कंप्यूटर के थ्रू. दिस इज द सॉफ्टवेयर थिंग्स. Then one thing you have to remember, a sequence of instructions for the computer is known as the program. What is program? This is the definition. A sequence of instructions for the computer. Okay. बहुत सारे instructions एक सीक्वेंस में काम करते हैं, ठीक है, वो एक प्रोग्राम बन जाता है. A sequence of instructions for the computer is known as the program. The data that are manipulated by the program consists the database. और वो instructions और वो program जो भी डाटा आउटपुट देते हैं, जो भी डाटा मैनिपुलेट करता है, उसे हम डाटाबेस कहते हैं, जहाँ पे स्टोर होता है सारे आउटपुट्स और तो सारा डाटा. A computer system is composed of its hardware and system software for its use. One thing you know here is the system software. कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? वो कंबाइन होता है हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का. हार्डवेयर मतलब जो भी सारे हार्डवेयर पार्ट्स हम देखते हैं, CPU एंड द कीबोर्ड्स एंड द मॉनिटर, मदरबोर्ड्स जो CPU के अंदर होता है, वो सारे चीज़ें होते हैं हार्डवेयर पार्ट. और एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं. वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम. द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ collection of programs whose purpose is to make more effective use of the computer. एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है. उसका मेन पर्पस होता है इफेक्टिवली कैसे वो कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर जितना अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा, उसका कंप्यूटर सिस्टम वैसे ही इफेक्टिवली काम करेगा. द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हुज पर्पस, मेन पर्पस, मोर इफेक्टिव यूज ऑफ द कंप्यूटर. दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. द प्रोग्राम इंक्लूड इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज इज रेफर्ड टू एज द ऑपरेटिंग सिस्टम. वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू कंपाइल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द टास्क और प्रॉब्लम. वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और द ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, जो भी एप्लीकेशंस हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया और VLC, जितने सारे एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. ये भी एक प्रोग्राम है. लेकिन ये काम कैसे करेगा? इसको काम कराने के लिए इसका जो प्रोग्राम है उसे कंपाइल करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. वही होता है मेन पर्पस. द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू कंपाइल द एप्लीकेशन प्रोग्राम. ये जो एप्लीकेशन है उसका प्रोग्राम को कंपाइल करके उसे एग्जीक्यूट कराएगा, ओके. और जो भी प्रॉब्लम और जो भी टास्क हम कंप्यूटर को दिए होंगे उसे कंप्लीट करेगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम
इज एग्जिस्ट बिटवीन द यूजर नीड एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर। जो हार्डवेयर का कैपेबिलिटी होता है, जो हार्डवेयर काम कर सकता है उसके और यूजर का जो चाहिए उसके बीच में वो एक क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। जो कि नीड होता है यूजर का उसको लेकर जाता है और उसका हार्डवेयर का जो कैपेबिलिटी होता है काम करने का उसे चेक करके अगर उससे वो चीज़ पॉसिबल है तो वो आउटपुट देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही चीज़ होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर वो तो मैंने पहले भी एक बार बोल दिया था कि हार्डवेयर क्या होता है। सो कंप्यूटर हार्डवेयर का काम क्या होता है, तो हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। 3 चीज़ें होता है, एक सीपीयू होता है, एक रैम होता है, एक आईओपी होता है जो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इनपुट आउटपुट को संभालता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज सीपीयू। CPU consists an arithmetic and logic unit for manipulating data। एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट को संभालता है, जो भी प्लस माइनस ऑपरेटर्स होते हैं उसे भी देखता है। ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स फॉर स्टोरिंग डाटा, बहुत सारे रजिस्टर्स रखता है जिसे हम स्टोरेज कहते हैं, डाटा स्टोर के लिए रखता है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये रैम नहीं होते, ये परमानेंट मेमोरी होते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी के नाम हम जाता है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और HDD आजकल भी आ चुके हैं, सॉलिड डिस्क ड्राइव। ठीक है, कंट्रोल सर्किट फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। इसके पास कंट्रोल सर्किट्स भी होते हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसे कहाँ पर भेजना है, कौन सा काम किसका होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो भेजते हैं वो कंट्रोल सर्किट्स के थ्रू होते हैं। CPU कंप्लीट हो गया। CPU कंटेंट्स एन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है CPU के पास। ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स रखता है जो कि डाटा स्टोर करता है रजिस्टर्स के अंदर, जिससे मैंने एग्जांपल दिया HDD और SDD, ये सारी चीज़ें होते हैं। कंट्रोल सर्किट्स जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस भेजता है और हार्डवेयर सिस्टम से काम करवाता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद आएगा तो मेमोरी पैड, और जिसे हम रैम बोलते हैं। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर contains storage for instructions and data. It is called a random access memory और RAM। RAM क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस और छोटे छोटे डाटास को होल्ड करता है कुछ स्थायी समय के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं रैम। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को सुनेगा, उसके थ्रू जो जो चीज़ चाहिए वो CPU को देगा, बस इतना ही काम होता है रैम का। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कंटेन्स स्टोरेज, उसके पास एक स्टोरेज होता है फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और छोटे छोटे डाटास के लिए। बिकॉज CPU कैन एक्सेस एनी लोकेशन ऑफ मेमोरी और रैंडम एंड रिट्राइव द बाइनरी इंफॉर्मेशन विद इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि मैंने बोला था। CPU क्या करता है इस मेमोरी में, वो रैंडमली सारी चीज़ें एक्सेस करता है। इसमें से जो चीज़ जिस समय चाहिए इसको रैंडमली एक्सेस करता है, और बाइनरी इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर होता है उसे कुछ ही समय में सिर्फ कुछ समय के लिए ही उसे रिट्रैव करता है उससे। ठीक है, वही होता है रैम। और उसके बाद आ गया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और IOP contains electronic circuits for communicating and controlling the transfer of information between the computer and the outside world। जो कंप्यूटर होता है और एक आउटसाइड होता है जो कि यूजर होता है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इसके बीच में। ये क्या करते हैं, जो भी इसके पास कुछ सर्किट्स होते हैं, ठीक है, वो भी CPU में लगा होता है। द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के पास यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन आएगा और कंप्यूटर से कौन सा इन्फॉर्मेशन यूजर के पास जाएगा, ये सारे चीज़ों के लिए इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड कनेक्ट रहता है, माउस कनेक्ट रहता है, प्रिंटर कनेक्ट रहता है। ये सारे चीज़ों के थ्रू वो
लेन देन करता है कंप्यूटर और आउटसाइड और द यूजर के बीच में. द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर जस्ट लाइक कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, टर्मिनल्स, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स एंड अदर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. आजकल मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव की तरह पेन ड्राइव यूज होता है, पेन ड्राइव यूज होता है. One thing you have to remember here, when dealing with computer hardware, it is customary to distinguish between computer organization, computer design and computer architecture. जब भी हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना होगा, हमें इस चीज़ के बीच डिफरेंस मालूम होनी चाहिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर डिजाइन क्या है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है. ठीक है, ये सारे चीज़ों के बीच हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, डिजाइन ये होता है, आर्किटेक्चर ये होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आप ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या जानते हैं? पहले आप बोलिए ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आप क्या जानते हैं? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कुछ चीज़ों के ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ हम कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में कहाँ पे क्या चीज़ रखना है, कौन सा चीज़ कब होगा, ये सारे बात हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, वही चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन. द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म कंप्यूटर सिस्टम. किस तरह एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट करेंगे, कैसे वो कनेक्ट होंगे, इसी बारे में हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में. द वेरियस कंपोनेंट्स आर अज्यूम्ड टू बी इन प्लेस एंड द टेक्स इज टू बी इन्वेस्टिगेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू वेरीफाई दैट द कंप्यूटर पार्ट्स ऑपरेट एज इंटेंडेड. जैसे हमें चाहिए वैसे वो ऑपरेट कर पा रहे हैं, यही चीज़ें देखने के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस जगह में वही टास्क के लिए सिर्फ यही चीज़ें ऑर्गेनाइज किया जाएगा. उसका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं जिसके थ्रू हम कौन सी पार्ट कहाँ पे लगाएंगे और उसे वेरीफाई करते हैं कि जैसे हमें चाहिए वैसे ही वो काम करता है या नहीं करता. ठीक है, आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए. ठीक है, जब आप भूल जाएंगे ये चीज़ें, कंसेप्ट भूल जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा, दोबारा आपको याद आ जाएगा. मैं एक बार और से रीड कर देता हूँ. द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड द वे they are connected together, how they are connected together, how they are operated. ठीक है, and the various components we assume that the which parts where we should place. ठीक है, assume to be in place and the task is to be investigate the organizational structure to verify that the computer parts operate as intended. हम ये सारे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते हैं? वेरीफाई करने के लिए कि वो सारे पार्ट्स सही से ऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे. उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बाद और एक चीज़ आएगा जो कि है कंप्यूटर डिजाइन. कंप्यूटर डिजाइन इज कंसर्न्ड विथ द हार्डवेयर डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर डिजाइन होगा, हमें स्ट्रक्चर्स मिल गए, कौन सी पार्ट कहाँ कनेक्ट होंगे, कहाँ पे मिल गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया. हमने एक चीज़ प्रिपेयर कर लिया, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है. जैसे कि हमारे टास्क जो देंगे हम, जैसे कि हमें चाहिए वो काम कैसे करेगा. उसके बाद डिजाइनर का काम आता है उसे डिजाइन करना, उस हार्डवेयर पार्ट को डिजाइन करना. कंप्यूटर डिजाइन इज कंसर्न्ड विथ द हार्डवेयर डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर. वंस द कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस आर फॉर्मुलेटेड, इट इज द टास्क ऑफ द डिजाइनर टू डेवलप हार्डवेयर फॉर द सिस्टम. वो सिस्टम के लिए हार्डवेयर प्रिपेयर करना शुरू कर देगा. कौन? डिजाइन. कंप्यूटर डिजाइन इज कंसर्न्ड विथ द determination of what hardware should be used and how the parts should be connected. हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाने के बाद हमें डिसाइड ये करना है कि कैसे वो सब कनेक्टेड होंगे, हार्डवेयर शुड बी यूज्ड कैसे यूज होंगे और उसके पार्ट्स कैसे कनेक्टेड होंगे. ये सारे चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं? कंप्यूटर डिजाइन फेज में. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन. किसका इम्प्लीमेंटेशन? जिसके ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे होंगे उससे हम कंप्यूटर डिजाइन में डिजाइनिंग करेंगे, उसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. इसीलिए कंप्यूटर डिजाइन फेज को हम कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं. उसके बाद आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर. व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड विथ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर एज सीन बाय द यूजर. जैसे कि यूजर को दिखता है, जैसे कंप्यूटर काम करता है, ये वो सारे चीज़ें आर्किटेक्चर होता है.
ठीक है। कैसे? इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स। आर्किटेक्चर में क्या होता है? इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग मेमोरी होता है, कैसे हम मेमोरी को एड्रेस करेंगे, कैसे सीपीयू प्रोसेसर मेमोरी को एड्रेस करके वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होता है आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है। The architectural design of a computer system is concerned with the specifications of the various functional modules such as processor and memories and structure them together into a computer system। ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में और एक चीज़ भी होता है, क्या होता है? सारे जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोसेसर और मेमोरीज होते हैं, ठीक है, हम उसे क्या करते हैं? उसे स्ट्रक्चर करते हैं टुगेदर, एक साथ लाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जैसे कि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ करना है, यहाँ पे एक साथ करना है। उसके बाद हमें एक परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला के हमें कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, और उसे मिलाने का काम हम आर्किटेक्चर फेज में करते हैं। ठीक है, उसे आर्किटेक्चर फेज में करते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स, जो कि बिल्कुल प्रॉब्लम बेस्ड है। और अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आपके आगे जाके बहुत इजी होगा समझने के लिए। और अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा से देखिए, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक था ये, जो कि है डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल्स के बारे में पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट। थैंक यू।